ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ICSE ਬੋਰਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ। ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ देखो ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗੈਸ ਲਾਸ। ਕਿਹੜੇ ਗੈਸ ਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਫਸਟ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲਸ ਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੋਲੀਅਮ। ਜੇ 1 ਵੋਲੀਅਮ ਫਿਰ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਰਲਸ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ V ਤੇ T, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਸਰਾ ਲਾ, ਗੇ-ਲੋਸੈਕ ਲਾ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਵੋਲੀਅਮ। ਤੀਸਰਾ ਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੇ-ਲੋਸੈਕਸ ਲਾ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਗੈਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਗੇ-ਲੋਸੈਕਸ law of combining volume of gases, combining volume of gases। देखो ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵਾਟਰ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਵੀ ਸਟੀਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਥੇ 2 ਲਾਤਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਏ 4, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਲਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਲੈਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ, ਆ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 1 ਲੀਟਰ ਲੈਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਬਣੂਗਾ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਲੈਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ, ਵੋਲੀਅਮ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਵੋਲੀਅਮ ਲੈਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੋਲੀਅਮ ਕਿਹਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ, 2 ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ੋ 1 ਰੇਸ਼ੋ 2, ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 4 ਲੀਟਰ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
भी जेकर 2 लीटर वाटर बनाना तो 2 लीटर हाइड्रोजन चाहिए, जे 4 लीटर वाटर बनाना तो 4 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। वेखो सेम सेम है ना। जेकर 10 लीटर वाटर बनाना तो 10 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। फिर आप कह सकते हैं, इत्थे दी मैं स्टेटमेंट लिखता वह बुक ते काफ़ी वड्डा पैरा च बनया वा। आप इत्थे की कह सकते हैं, आप कह सकते हैं वैन गैशियस रिएक्ट, दोवें गैशियस फेस में होने चाहिए, 2 या 3 जिन्ने मर्जी रिएक्टेंट आ। वैन गैसिस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर गैस then ratio between their volumes then all of them ਦਾ मतलब रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दोनों ही bear a whole number ratio in volume। देखो इत्थे की किया वा, गे-लुसैक-लॉ ने किद्दां स्टेटमेंट लिखी आ, जदों गैशियस रिएक्ट करदियां। अब देखो लिखिया वैन गैसिस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर गैस। कंडीशन की आ, रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दोनों गैसिस विच होने चाहिए। वैन गैसिस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर गैस then all of them bear a whole number ratio in volume। bear a whole number इत्थे इंटीजर वो नहीं होने चाहिए, डेसीमल विच कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे नंबर होने चाहिए। ये सी साडा पहला ला। फिर देख लियो जदों गैसिस, मैं एक अनदर एग्जाम्पल विच फिर आ चीज़ क्लीयर करदा वां। एक होर एग्जाम्पल देखियो, वेखियो आ स्टेटमेंट फिर समझ आउंदी है। जिद्दां मैं इत्थे लिखा मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अनदर एग्जाम्पल देखियो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कीते ते की बनिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो मीथेन केड़ी फेस विच या गैशियस फेस विच, इनू कहीदा मीथेन बायोगैस हुंदी आ। ऑक्सीजन केड़े फेस विच या गैशियस विच, कार्बन डाइऑक्साइड भी केड़े फेस विच या गैशियस विच, पर जिहड़ा वाटर बनिया ये केड़े फेस विच हैगा, लिक्विड विच। हुण ला अल देखो ध्यान नाल, उन्होंने क्या गैसिस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर गैसिस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर गैस। जिहड़ी चीज़ लिक्विड दे विच आ उहनूं कंसीडर नहीं करना इस लॉ दे विच। उन्होंने क्या गैसिस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर गैस then all of them bear a whole number ratio in volume। रेशो उदों लिखनी पहलों इनू बैलेंस करो, एक कार्बन बैलेंस, एक ऑक्सीजन ते ऑक्सीजन किन्ने 2 ते 1 3 ऑक्सीजन। पहलों वेखो कार्बन बैलेंस है ना, एक कार्बन ते एक कार्बन। ऑक्सीजन किन्ने आ, 2 ऑक्सीजन इत्थे आ ते 3 ऑक्सीजन इत्थे आ। आपां की करांगे, जिहड़ा H2O वा उहदे नाल 2 ला दईए ते इत्थे भी 2 ला दईए। हुण ध्यान नाल देखियो, एक कार्बन ऑक्सीजन हो गए 4, ऑक्सीजन किन्ने 2 + 2 4 हो गए। हाइड्रोजन भी 4 ते हाइड्रोजन भी किन्ने ने 4। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गई। हुण आपां की लिखना हुंदा, इहदे अगे वेखो स्टोकियोमैट्री की लगा 1, जे कुछ ना लिखिया होवे 1, आपां कहना 1 वॉलीअम कंबाइन विद 2 वॉलीअम ऑफ ऑक्सीजन मेक 1 वॉलीअम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ते इहदा वॉलीअम निगलिजिबल 0 हुंदा, लिक्विड ते सॉलिड का वॉलीअम निगलिजिबल मान के चलना, 0 मान के चलना। गैसिस ज़्यादा एक्सपैंड कर दियाँ, उन्हों का कोई वॉलीअम कंसिडर करना आपां। फिर रेशो की आ गई 1:2:1। इत्थों सानू आइडिया हो गया
भी जेकर आपां मान लो वॉल्यूम लीटर विच आ, जे आपां 1 लीटर मीथेन वरतदे तो 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनदी, जे 2 लीटर वरतांगे तो 2 बन जू, 10 लीटर वरतांगे 10 बन जू, 20 लीटर वरतांगे 20 बन जू। फिर वेखो क्लीयर हो गया, जदों गैसिस रिएक्ट करदियां बनाउंदियां एक होर गैस, फिर आ जिहड़ी रेशो हुंदी वॉल्यूम दे विच ये सारी किहड़ी आऊगी होल नंबर। ठीक है, ये तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। हुण आपां क्वेश्चन करके वेखने आ, क्वेश्चन तो होर सानू क्लीयर होऊगा। क्वेश्चन देखदे किदां दा साडे कोल आ सकदा। क्वेश्चन देखियो, जिद्दां क्वेश्चन हैगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन की कंडीशन दिती आ, प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 लीटर ऑफ CH4 गैस, मीथेन गैस इग्नाइट कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इग्नाइट का मतलब बालना ही हुंदा, इग्नाइट कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। पहलों तो तुहानू रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शनस की प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन अटैम्प्ट होने ने। देखो उन्होंने कहा भी किन्नी कार्बन डाइऑक्साइड बनूगी, किन्नी कार्बन डाइऑक्साइड बनूगी जेकर मीथेन नू रिएक्ट कराइए ऑक्सीजन दे नाल कंबशन कराउणी। मीथेन एक फ्यूल आ, बायोगैस जिहड़ा गोबर गैस प्लांट चों पाइप के थ्रू आउंदा किचन दे विच चुल्हियां दे विच पाइप फ्यूल की तरह बालदे ना आपां। मीथेन एक गैस आ, ओहदी कंबशन जदों कोई भी गैस या कोई भी फ्यूल नू बालदे आ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उहनूं कहीदा कंबशन। मीथेन नू बालदे पए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों गैसिस आ ते इन्हां ने की बनाती कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हुणे आपां ये रिएक्शन लिखी ही, बैलेंस किद्दां कीता ही, इत्थे 2 लाया ही ते इत्थे 2 लाया ही। रिएक्शन बैलेंस करनी जरूरी आ, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 ते ऑक्सीजन भी 4। हुण क्वेश्चन च उन्होंने कहा भी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बना सकदी 10 लीटर मीथेन। ਇਹਦਾ वॉल्यूम आपां पता करना जी, याद रखियो। पहलों बैलेंस हो गया, हुण आपां लिखिए गे-लुसैक लॉ के अकॉर्डिंग। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ 1 ਲੀਟਰ मीथेन, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ 2 लीटर ऑक्सीजन कंबाइन हो के ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ 1 लीटर की बनाउणगीਆਂ कार्बन डाइऑक्साइड। पर आपां नूं 1 लीटर मीथेन नहीं दिती, किन्नी मीथेन दिती 10 लीटर। फिर सारी इक्वेशन नूं वाटर जिहड़ा उहनूं नहीं लिखना लिक्विड फॉर्म नूं, सारी इक्वेशन नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा देना 10 ना जेकर आपां मल्टीप्लाई करावांगे 10 इत्थे भी आ गया, 10 लीटर मीथेन 20 लीटर ऑक्सीजन ते 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने सानू यो पूछा है ना भी 10 लीटर मीथेन किन्नी CO2 बना सकती, तो 10 लीटर CO2 ही बना सकती। फिर आपां कह दांगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज इक्वल टू 10 लीटर। इस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट होने जी। ठीक है, सीधा एक रिएक्शन लिखो, गे-लुसैक लॉ लाओ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला, तो जिन्ने लीटर क्या वा उन्ने कर दो। ठीक है, तो आपे आंसर बन जाना। नैक्सट क्वेश्चन देखियो साडे कोल की आ,
ठीक है, इन्हों प्रॉपर तारी जाओ। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप इस ला के अकॉर्डिंग की हैगा। सैकेंड क्वेश्चन दे विच की कहा गया, उन्होंने कहा अमोनीया रिएक्टेड विद ऑक्सीजन फॉर्म निट्रिक एसिड। उन्होंने की कहा वा अमोनीया रिएक्टेड विद ऑक्सीजन फॉर्म निट्रिक ऑक्साइड। होर अगे की क्या उन्होंने, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 27 लीटर। ये थोड़ा औखा है पिछले क्वेश्चन नालों। इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 27 लीटर। एक सानू ये चीज़ गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ निट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। पता की करना आपां, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ निट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। देखिए उन्होंने किस तरह करांगे आपां। ठीक है, हर क्वेश्चन सौखा नहीं होना, ये थोड़ा कापां नूं हुण दिमाग की लोड़ है। देखो पहलों तो रिएक्शन लिखिए। उन्होंने की किया, उन्होंने कहा अमोनीया हुंदा NH3। अमोनीया रिएक्टेड विद ऑक्सीजन प्लस पा के लिख देंगे ऑक्सीजन। की बनाऊंगी निट्रिक ऑक्साइड। अमोनीया ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके की बनाता निट्रिक ऑक्साइड। NO का फार्मूला हुंदा। हुण देखो इत्थे हाइड्रोजन नहीं, इत्थे किते हाइड्रोजन तो बनिया ही नहीं, फिर इत्थे एक वाटर मॉलीक्यूल भी बनूगा, H2O भी बनिया। अमोनीया एक गैस आ, ऑक्सीजन एक गैस आ, निट्रिक ऑक्साइड एक गैस आ। तो आ जिहड़ी चीज़ आ देखो इत्थे कंडीशन के हिसाब नाल जे ते कुछ नहीं कह पईए भाफ या स्टीम या फिर गैस ना लिखो, फिर की लिख दो लिक्विड। जे ते क्या हुंदा स्टीम बनती पई फिर गैशियस ही लिखना है। हुण वेखो सब तो पहलों स्टैप की आ रिएक्शन नूं बैलेंस करना। एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन इत्थे हाइड्रोजन किन्ने 3 ते उत्थे हाइड्रोजन किन्ने ने 2। इत्थे 2 वा ना, आपां की करिए आपां हाइड्रोजन 2 इत्थे हैगे हाइड्रोजन 3। जेकर आपां इत्थे 4 लाइए नाइट्रोजन हो गए 4, इत्थे भी 4 ला दिए नाइट्रोजन हो गए 4। इस 4 लाने का फायदा की होया, क्योंकि हाइड्रोजन नूं बैलेंस करना सौखा हो जाना। 4 3 जा 12, इत्थे मैं 6 ला दूंगा। अब देखो 4 3 जा 12 तो 6 2 जा 12। हुण मैं सिर्फ आ चीज़ कल्ली बैलेंस करनी। नाइट्रोजन 4 बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 12 बैलेंस हो गए। इधर ऑक्सीजन किन्ने 4 ते 6 10, इत्थे मैं 5 ला दूंगा। 5 2 जा 10। वैसे तुसीं रूल की फॉलो करना, तुसीं हाइड्रोजन नूं लास्ट ते बैलेंस करिया करना। पहलों हाइड्रोजन नूं लास्ट ते बैलेंस करो, जिदा पहलों नाइट्रोजन करता फिर ऑक्सीजन करता ते तीजे ते हाइड्रोजन करिया करो, आपे बैलेंस होण डै पैंदियां। हुण वेखो जेकर मैं इधर ना ध्यान मारा, मैं गे लूसैक ला लाउना वा, मैं की कहूँगा 4 लीटर अमोनीया, 5 लीटर ऑक्सीजन, 4 लीटर NO निट्रिक ऑक्साइड बनाउंदे लिक्विड वाली चीज़ नहीं लिखनी। आ चीज़ होगी। हुण वेखियो इत्थे आपां की करना, इत्थे थोड़ा रफ वर्क आपां करिए। जेकर आपां क्वेश्चन च वेखिए गिवन की आ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन च गिवन की हैगा वा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट किहदे बराबर दिता, किन्ने लीटर दिता 27 लीटर।
27 ਲੀਟਰ। ठीक है, किन्ना दिता 27 लीटर। ये आपां लिखता ते इधर आ जाओ, ध्यान नाल देखदे आ। इत्थे मैं इदां ही लिखदा 4 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम ते 4 वॉल्यूम। गे लूसैकला प्रॉपर वी च ही लिखना हुंदा। आपां एक वी दी वैल्यू कड्ढीए पहलों। हुण इधर देखो इन्नियां चीज़ां नूं रैक्टेंट बोलांगे आपां, एरो तो अगे प्रोडक्ट बने ना। इधर देखो जिहड़े रैक्टेंट दिते इन्हां दा वॉल्यूम किन्ना, 5 ते 4 ऐड करके 9 बन जो। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट दिता 27 लीटर। तो जे रिएक्शन के अकॉर्डिंग वेखिए फिर वॉल्यूम किन्ना, 5 ते 4 9 बन गया, 9 वॉल्यूम। 9 वॉल्यूम किहदे बराबर आ, 27 लीटर दे। 27 लीटर दे 9 1 जा 9 3 जा 27। फिर वॉल्यूम किहदे बराबर आ गया, 3 लीटर दे। हुण इधर आ जाओ, वी दी वैल्यू भरीए। वी दी वैल्यू किन्नी आ गई, 3 भरता। वी दी वैल्यू आ गई 3 लीटर, 3 भरता। वी दी वैल्यू आ गई 3 लीटर, 3 भरता आपां। 4 3 जा 12 लीटर, 5 3 जा 15 लीटर, 4 3 जा 12 लीटर। हुण इत्थे ते आपां नूं पुछया कि उन्होंने कहा ना किन्ना वॉल्यूम बनूगा निट्रिक ऑक्साइड का, तो किन्ना बन गया 12 लीटर। बस सिंपल आ गया। आपां कवांगे आ देखो निट्रिक ऑक्साइड का 12 लीटर ही बनया ना। वॉल्यूम ऑफ निट्रिक ऑक्साइड इज इक्वल टू 12 लीटर। ठीक है, ये साडा इहदा सल्यूशन बन गया। ठीक है, नैक्सट देखियो। हुण आपां पढ़ना वा लिमिटिंग रिएजेंट की हुंदा। थोड़ा देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की होगा, ये चीज़ नोट कर लियो। ये अपना गे-लूसैक लॉ दे विच आपां 2-3 न्यूमेरिकल देखे आ, सिंपल भी देख लिया तो एक डिफिकल्ट भी देख लिया आपां। देखो साडा नैक्सट हैडिंग आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। ते जां एक हुंदा जे नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। नॉन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट ते नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट नूं होर की कहीदा, रिएक्टेंट। फिर मैं इत्थे लिख सकदा लिमिटिंग रिएक्टेंट भी, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लिख सकदा। ते इनू मैं होर की लिख सकदा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। जदों भी रिएक्टेंट जदों भी रिएक्शन होनी ना, एक रिएक्टेंट ने पूरा कंज्यूम हो जाना तो एक ने बचिया रह जाना। जेड़ा रिएक्शन के एंड तक खत्म हो जे उन्होंने कहीदा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो मुक गया पूरा। तो जेड़ा एंड तक बचिया रह जे, रिएक्शन कंप्लीट हो जे, उन्होंने कह दईदा नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। फिर आप कह सकते लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट हुंदा वा जेड़ा कंज्यूम हो गया कंप्लीटली इन द रिएक्शन। आप कह सकते हैं इट इज़ दैट रिएक्टेंट, it is that reactant which consumes completely in the reaction। जे तुहानूं ये चीज़ थोड़ा हजे होर क्लीयर करना चाहुंदे आ ते जां तुसीं कह सकदे आ इट विल नॉट बी लैफ्ट बिहाइंड, और it will not be left behind after the completion of reaction, after the completion of reaction। मैं दसूँगा लिमिटिंग रिएजेंट किद्दां आपां लभदे आ। फिलहाल सानू इन्हां च फर्क पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट वो वा जिहड़ा पूरा वरतिया गया जदों रिएक्शन हुई।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪੂਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਨੋਨ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ, it is that reactant which don't consume completely in the reaction ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ और पा के फिर इदां दी वर्डिंग विच लिख लीए, it will be left behind after the completion of reaction। it will be left behind after the completion of reaction। ठीक है, ये फर्क जे लिमिटिंग रीएजेंट ते नॉन लिमिटिंग रीएजेंट विच। जिस तरह मैं कोई एग्जाम्पल लिखा, मैं इत्थे एग्जाम्पल एक लिख लेना कोई, पर इदां सीधा एग्जाम्पल ते पता नहीं लगना, क्वेश्चन करांगे फिर पता लगूगा। जिद्दां मीथेन आ, ये ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर बना गया। हुण इन्हां विचों एक होना जे लिमिटिंग रीएजेंट ते एक होना वा नॉन लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग वो होगा जिहड़ा खत्म हुई रिएक्शन ते खुद भी खत्म हो गया। दूजा होना वा जिहड़ा रिएक्शन खत्म होने दे बाद भी कुछ ना कुछ बचिया रहिंदा, उहनूं कह दईदा आपां नॉन लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, अज लई आपां इन्ना ही करदे आं। कल इहदे नाल रिलेटेड नूमैरिकल बनावांगे आपां लिमिटिंग ते नॉन लिमिटिंग दे नाल। देखो ਆਪਾਂ ਕੀ पढ़ चुके हैं, ਤੁਹਾਡੀ बुक के अकॉर्डिंग ही कराउण दिया वा। ICSE बोर्ड की जिहड़ी बुक है उहदे अकॉर्डिंग ही आपां चलदे पए आ। आपां मोल कंसैप्ट स्टार्ट किया ही आपां लास्ट डेज तो। आपां इहदे विच की पढ़िया? गैस लास किहड़े किहड़े आ? बॉयल्स ला, चार्ल्स ला। हुण आपां कीता गे-लॉसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ते एक आपां एवागैड्रो लॉ भी पढ़ना। ठीक है, आपां फस्ट सैकेंड ते थर्ड 3 कंप्लीट कर चुके विद नूमैरिकल ये कंप्लीट हो चुके आ। तो हुण आपां वैसे विच होर भी चीज़ां पढ़ लिमिटिंग रीएजेंट पढ़ लिया, नॉन लिमिटिंग रीएजेंट पढ़ लिया। कल आपां इहदे नाल रिलेटेड नूमैरिकल बनावांगे, फिर आपां एवागैड्रो लॉ ते पहुंचांगे। ठीक है, इन्नियां चीज़ां नूं पढ़ियो, वधिया समझियो। थैंक यू।